Good morning student. Today I will teach you physical education unit 6 physical activity and leadership in training. तो पहले हम पढ़ेंगे कि एक लीडर का रोल क्या होना चाहिए. रोल ऑफ अ लीडर. अ लीडर हैज़ टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड रोल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन which are described below. Structuring the situation. The leader's foremost function is to structure the situation for the group members. She interprets the actual situation by clarifying ambiguities and by emphasizing aspects. Then she focus on the goal, important facts and distort the data. 8 group members accept her interpretation. Then cooperative behavior of group is possible. The leader of physical education observes every situation minutely at tournaments or competition. She interprets the complete situation to member of a team. She clarifies doubts and sets goal for her team. Controlling group behavior. The physical education leader always tries to minimize certain types of individual behavior that may be against the best interests of the whole team. The leader enforces rules effectively. She enforces the rule of the group using rewards and punishments. She may warn the member or player of a team who demonstrates indiscipline. She may give rewards to a player who performs well and proves herself and asset to the team. In this way, the leader of physical education controls the group behavior. इसका मतलब ये है रोल ऑफ अ लीडर, मतलब एक जो नेता होता है, एक नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए. एक नेता को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य और भूमिकाओं को निभाना पड़ता है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. पहले होता है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, मतलब संरचना. नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समूह के सदस्यों के लिए स्थिति की संरचना करना है. वह अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और कुछ पहलुओं पर जोर देकर वास्तविक स्थिति की व्याख्या करता है. फिर वह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है. ऐसा करने से उसे लगातार निष्पक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए, या वह महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार कर सकता है और डेटा को विकृत कर सकता है. यदि समूह के सदस्य उसकी व्याख्या स्वीकार करते हैं तो समूह का सहकारी व्यवहार संभव है. शारीरिक शिक्षा के नेता हर स्थिति का सूक्ष्मता से पालन करते हैं. टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं में वह एक टीम के सदस्यों के लिए पूरी स्थिति की व्याख्या करते हैं. वह संदेह को स्पष्ट करता है और अपनी टीम के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमारा क्या गोल है. समूह व्यवहार एवं नियंत्रण, मतलब कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर. तो समूह व्यवहार पर नियंत्रण. शारीरिक शिक्षा नेता हमेशा कुछ प्रकार के व्यक्तिगत व्यवहार को कम करने की कोशिश करता है जो पूरी टीम के सर्वोत्तम हितों के खिलाफ हो सकता है. नेता नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करता है. वह पुरस्कार और दंड का उपयोग करके समूह के नियम को लागू करता है. वह उस टीम के सदस्य या वादक को चेतावनी दे सकता है जो इनडिसिप्लिन करते हैं गेम्स के अंदर या कहीं पे भी. वह अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दे सकता है और टीम के लिए खुद को संपत्ति साबित कर सकता है. और जो एक शारीरिक शिक्षा के नेता का समूह का व्यवहार होता है उसको नियंत्रित कर सकता है, मतलब अपने ग्रुप को नियंत्रण कंट्रोल कर सकता है. उसके बाद आता है हमारा स्पीकिंग फॉर द ग्रुप. ठीक है. द लीडर प्लेज अ रोल ऑफ स्पोक्समैन. ही स्पीक्स फॉर द ग्रुप. अ लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू द इमोशन ऑफ अदर. ही शुड बी स्किलफुल इन translating the group's feeling into both words and action. Planning for the group. The leader decides the ways and means by which the group shall achieve its end. This comprises both short and long range planning, and it is up to the leader to determine what part of the plan would she share and what part she should confide to a select few or to none. Due to this role as a planner, the followers develop a feeling that a successful leader can solve all problems efficiently
A leader has every aspect in his her mind while making a plan or a policy. It needs a thought and vivid knowledge to lay out a plan. In the field of physical education, the leader makes both types of plan, i.e. short term as well as a long terms. ठीक है. Execution of plan. The leader may execute various plans which she constructs for the benefit of his or followers. Execution in an important factor in achieving the aims and objectives of the group. It is said that well begin in half done. So if plans are executed well, there can be good achievements later, and a leader responsibility is to see that the objective of the group are put well into all the affairs. In execution or not, she does not poke his her nose, but if she become a bottle neck, many valuable plan become zero if those are not executed well. So success or failure of a plan depends upon the way execute. In a leader executes a plan most efficiently, she handles it with great care. उसके बाद आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव. लीडर इज द sole representative of the group. In the field of sports, the leader speaks for the whole team. If the team faces any problem, the leader discusses the problem with authorities. She fights for the members of the team. She is the main person who goes forward to talk for the team. Leader as a controller of internal relationship. All matters pertaining to discipline of the group or team like rewards, warning or arbitration are all in the hands of the leader. The internal differences are settled by the leader. She makes every effort to raise the normal standard of the team. She takes decision either his her own or with the help of other, takes disciplinary measure against a member who is in fault. Leader as an exemplar. Exemplar का मतलब होता है a leader inspire the member of his her group to team by his her quotable examples. She sets the norms of conduct, character and idealism. She has all the qualities within herself that she would like to include among other members of his her team. The group unity is also enhanced when leader performs his her work heartily. Leader as an exemplar. तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या था. पहले हमारा स्पीकिंग फॉर द ग्रुप मतलब समूह के लिए बोलना. नेता प्रवक्ता की भूमिका निभाता है. वह समूह के लिए बोलता है. एक नेता को दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए. उसे समूह की भावनाओं को शब्दों और कार्यों दोनों में अनुवाद करने में कुशल होना चाहिए. समूह के लिए योजना नेता उन तरीकों और साधनों को तय करता है जिनके द्वारा समूह अपने सिरों को प्राप्त करता है. इसमें लघु और लंबी श्रेणी की योजना दोनों शामिल होती है. मतलब छोटी और लंबी कि हमें क्या करना है, और यह निर्धारित करना नेता के लिए है कि वह योजना के किस हिस्से को साझा करेगा और वह किस हिस्से को कुछ चुनिंदा या किसी को नहीं देगा. एक योजनाकार के रूप में इस भूमिका के कारण अनुयायियों को यह एहसास होता है कि एक सफल नेता सभी समस्याओं को कुशलता से हल कर सकता है. एक नेता के पास योजना बनाने का समय या नीति बनाने समय उसके दिमाग में हर पहलू होना चाहिए. इसे एक योजना बनाने के लिए गहन और विशद ज्ञान की आवश्यकता है. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेता दोनों प्रकार की योजनाएं बनाता है, अर्थात अल्पकालिक और दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है. उसके बाद हमारा आता है एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान, योजनाओं का निष्पादन. नेता विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है जिसका वह अपने अनुयायियों के लाभ के लिए निर्माण करता है. समूह के उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में निष्पादन एवं महत्वपूर्ण कारक है. कहा जाता है कि अच्छी तरह से शुरू किया गया आधा काम किया जाता है. इसलिए यदि योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है तो बाद में अच्छी उपलब्धियां हो सकती हैं. एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है वो यह देखना होता है कि समूह के उद्देश्यों को सभी मामलों में अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाए या नहीं. वह अपनी नाक नहीं
सकते हैं, लेकिन यदि वह करती है तो वह बोतल गर्दन बन जाती है। कई मूल्यांकन योजनाओं शून्य हो जाती हैं यदि उन्हें अच्छी तरह से निष्पादित नहीं किया जाता है। इसलिए किसी योजना की सफलता या असफलता उसके निष्पादन के तरीके पर निर्भर करती है। एक नेता एक योजना को सबसे कुशलता से निष्पादित करता है, वह इसे बहुत सावधानी से संभालते हैं। एक जो एथलीट होता है उसके संबंधों में उनके निबंध को तोड़ दिया जाता है। वह प्लेन मुझे मतलब बताता है कि मतलब कैसे कैसे उनको मतलब क्या प्लानिंग करनी है, कैसी करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि के रूप में नेता। नेता समूह का एकमात्र प्रतिनिधि है। खेल के क्षेत्र में नेता पूरी टीम के लिए बोलता है। यदि टीम को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो नेता अधिकारियों के साथ समस्या पर चर्चा करता है। वह टीम के सदस्यों के लिए लड़ता है। वह मुख्य व्यक्ति है जो टीम के लिए बात करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब सबसे आगे रहता है। उसके बाद आता है हमारा लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि समूह या टीम से संबंधित सभी मामले जैसे पुरस्कार, चेतावनी या मध्यवस्था सभी लीडर के हाथों में होता है। आंतरिक मतभेद नेता द्वारा तय किए जाते हैं। हेल्श टीम के नैतिक मानक को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वह अपने खुद के फैसले लेता है या दूसरों की मदद में गलती करने वाले सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक उपाय करता है, मतलब उन्हें पनिशमेंट वगैरह सब दे सकता है। उसके बाद आता है लीडर एज एन एग्जाम्पलर, नेता के रूप में एक उदाहरण। एग्जाम्पलर मतलब एक्सप्लेनर उसके उसमें ना। उसके बाद है नेता के रूप में एक उदाहरण। एक नेता अपने समूह के सदस्य या टीम को उसके उदाहरणीय उदाहरणों से प्रेरित करता है। वह आचरण चरित्र और आदर्शवाद के शीर्ष मानदंड तय करता है। उसके बाद वह आचरण चरित्र और आदर्शवाद के शीर्ष मतलब देखता है कौन कैसा है और कैसा नहीं है। वह अपने भीतर अपने आप में सभी गुण हैं कि वह उसकी टीम के अन्य सदस्यों के बीच संलग्न करना चाहता है। समूह की एकता तब भी बढ़ जाती है जब एक नेता पूरी मनोयोग से अपना काम करता है, मतलब अच्छे से अपना काम करता है और अच्छे से अपनी टीम का काम निभाता है।